What are the various psychometric theories of intelligence? There are five major psychometric theories of intelligence. First is Alfred Binet's unifactor, also known as one factor theory of intelligence. Then Spearman's two-factor theory of intelligence. After that, we have Thurston's theory of seven primary mental abilities. Then Arthur Jensen's hierarchical model of intelligence consisting of level 1 and level 2. And lastly, J.P. Guilford's structure of intellect model, also known as three-dimensional or 3D model of intelligence. First theory, Alfred Binet's uni or one factor theory of intelligence. Now remember, हमने इसके बारे में बात की है कि Alfred Binet, this is a very very important name because he was the first psychologist who tried to formalize the concept of intelligence in terms of mental operations. मतलब कि Simon and Binet, these were the two persons who were the first to formally measure intelligence. इन्होंने intelligence को measure किया था. And they also gave the concept of mental age, also known as MA. जब हम आगे IQ की बात करेंगे तब आपको ये mental age का concept समझ में आएगा. Alfred Binet theory, by the very name it suggests uni और one factor theory, मतलब एक ही single factor की बात की है इस theory ने. It is very simple in nature as it arose from his interest to differentiate more intelligent from less intelligent persons. Now, if you remember, हमने Alfred Binet की definition of intelligence क्या देखी थी? Ability to judge well, understand well, and reason well. उसी के बेस पे हम एक academic intelligence की corresponding बात कर रहे हैं कि एक ही फैक्टर है, एक जनरल फैक्टर है जिसको G फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस कहा गया है, जिसके बेस पे Alfred Binet अपनी यूनिफैक्टर थ्योरी में एक मोर इंटेलिजेंट पर्सन को लेस इंटेलिजेंट पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो दिस इज वेरी सिंपल. He conceptualized intelligence as consisting of one similar set of abilities, that is general intelligence or common sense, which can be used for solving any or every problem in an individual's environment. मतलब एक जनरल इंटेलिजेंस है, एक जी फैक्टर है, एक कॉमन सेंस है जो हम सब में सिमिलर है, ओके, जिसके बेस पे हम कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टास्क को सॉल्व कर रहे हैं इन आवर एनवायरनमेंट. His theory of intelligence was hence called uni or one factor theory of intelligence. Now, what are the limitations of this particular theory? This is the oldest theory of intelligence, okay? Limitations ये थी कि उन्होंने individual differences की बात नहीं करी. Limitations ये भी थी कि उन्होंने बाकी सारे factors जो contribute करते हैं intelligence को, उनको भी neglect कर दिया. उन्होंने सिर्फ एक common sense, एक जनरल इंटेलिजेंस की बात करी जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करेगी एज लेस इंटेलिजेंट और मोर इंटेलिजेंट. सो दिस वाज वेरी सिंपल अप्रोच टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटेलिजेंस. मूविंग अहेड, चार्ल्स स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. नाउ इन 1927 चार्ल्स स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी. यहाँ पर हमें अभी के लिए इतना याद रखना है कि इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया था जिसको हम फैक्टर एनालिसिस बोलते हैं, जिसकी बात हम बाद में करेंगे. नाउ स्पीयरमैन ने बोला कि एक जी फैक्टर होता है विच इज जनरल फैक्टर और एक एस फैक्टर होता है विच इज स्पेसिफिक फैक्टर एंड बोथ आर ऑपरेटिंग इन एन इंटेलिजेंट पर्सन. ओके, नाउ व्हाट इज अ जी फैक्टर? जी फैक्टर इंक्लूड्स मेंटल प्रोसेसेस, mental operations which are primary and common to all performance. मतलब जो हम यूनिफैक्टर थ्योरी में बात कर रहे थे, एक जनरल इंटेलिजेंस की या कॉमन सेंस ऑफ इंटेलिजेंस की, तो एक ही फैक्टर है विच अप्लाइज टू ऑल द इंटेलेक्चुअल टास्क एंड ये एक ही है, एक जनरल फैक्टर है, एक जनरल इंटेलिजेंस है. ओके, बट एट द सेम टाइम वी हैव एस फैक्टर दैट इज स्पेसिफिक एबिलिटीज विच अप्लाइज टू स्पेसिफिक टास्क. ओके, दे आर more than one and they are domain specific. For example, there are scientists, there are singers, there are architects, athletes, etc. They all may be high on G factor, but they have different specific abilities which allow them to excel or succeed in their respective domains.
कहने का मतलब ये है एक जी फैक्टर है, अगर वो सब में सिमिलर है भी, उसके अलावा हमारे पास कुछ एस फैक्टर्स होते हैं जो हमें अलग अलग टास्क में, अलग अलग प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं टू सक्सीड. ओके, सो चार्ल्स स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस टॉक्स अबाउट जी फैक्टर एज वेल एज एस फैक्टर. Now we have Lewis Thurston theory of 7 primary mental abilities. Okay. अब हमने बात की थर्स्टन की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में, दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी एबिलिटीज, ईच ऑफ विच आर रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ये जितनी भी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, दे ऑल आर independent of each other as per Lewis Thurston. Okay, the first one is verbal comprehension. Verbal comprehension का मतलब हुआ basically to understand concept, the words, the ideas. Okay, so verbal comprehension. Then numerical abilities means कि कोई भी न्यूमेरिकल टास्क को करने के लिए या कंप्यूटेशनल टास्क को करने के लिए हमारे अंदर क्या स्पीड है, क्या एक्यूरेसी है. थर्ड इज spatial relations, for example visualizing patterns and forms. ओके, हम कितनी आसानी से चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, हम कितनी आसानी से पैटर्न्स को समझते हैं. देन परसेप्चुअल स्पीड, मतलब जैसे अटेंशन टू डिटेल होती है, या कोई भी पर्टिकुलर टास्क को अगर आपको समझना है तो आप कितनी जल्दी पिकअप करते हैं. परसेप्चुअल स्पीड, स्पीड इन परसीविंग डिटेल्स और अंडरस्टैंडिंग डिटेल्स. Then word fluency, मतलब using words fluently and flexibly. आप कितने fluent हैं बोलने के लिए. ओके, आपका communication कैसा है, आप कितने vocal हैं. Then memory, again accuracy in recalling information simple enough. And lastly inductive reasoning. Now क्लास 11th में हमने इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में पढ़ा था. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव. हमने यहाँ पर बात की है इंडक्टिव रीजनिंग की. इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जनरल होती है. ओके, दैट इज डराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम ऑब्जर्व फैक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑफिस जाना है, ओके, और आपने क्या किया, ट्रैफिक पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया और उसके बाद डिसाइड किया कि आप किस टाइम से, और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आप किस टाइम पे घर से निकलेंगे. सो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस के बेस पे आपने एक जनरल कंक्लूजन बनाया. ऑलराइट, इंडक्टिव रीजनिंग. ओके, अब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कभी कभी भूल जाते हैं. इज देयर एनी ट्रिक टू रिमेंबर दिस? यस देयर इज. दिस इज MN, PRS एंड VW. सिंपल इनफ. जब आप ABCD करते हो तो कुछ सीक्वेंस में आपके अल्फ़ाबेट्स जाते हैं, वही सीक्वेंस में आपके पास MN आता है, PRS आता है, VW. ओके, MNOP PQRSTUVW. ऑलराइट, तो आप ऐसे ही इसको कॉम्बिनेशन में याद कर लो. ये चंकिंग मेथड है, ठीक है, ये हम मेमोरी में पढ़ चुके हैं क्लास 11th में. So M is for memory, N is for numerical ability, P for perceptual speed, R for reasoning, S for spatial relations, V for verbal comprehension, and W for word fluency. MN, PRS, VW. That's it. Arthur Jensen hierarchical model of intelligence, level 1 and level 2. एक बात ध्यान है, ये थ्योरी यूजुअली स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार के बोर्ड एग्जाम में इसी थ्योरी के बेस पर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया था. ओके, वो क्वेश्चंस मैं बाद में डिस्कस करूंगी आपके साथ. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द थ्योरी. नाउ एज पर आर्थर जेंसन, आवर इंटेलिजेंस ऑपरेट्स एट 2 levels, level 1 and level 2. Now what is level 1? Level 1 is also known as associative learning and level 2 is known as cognitive competence. लेवल 1 में हम क्या करते हैं, आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट. हमने कुछ भी पढ़ा, कुछ भी कॉम्प्रिहेंड किया, वो हमारा इनपुट है, और जो भी हमने याद किया वो हम एज इट इज अपने एग्जाम में लिख करके आ गए. ओके, सो आर इनपुट एंड आउटपुट वॉट सेम. ये हम कब करते हैं, व्हेन वी आर रोट लर्निंग, जब हम रट्टा मारते हैं, जब हम चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, जैसा हमने याद किया था वैसा एज इट इज हम लिख करके आ गए. So output is equal to input. Okay, this is known as associative learning or level 1 of hierarchical model of intelligence. Now level 2 में हम क्या करेंगे, हमारे पास again input है,
लेकिन हम इनपुट को समझेंगे, कॉम्प्रिहेंड करेंगे, उसके अंदर कुछ हायर ऑर्डर स्किल्स को यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल कॉग्निशन यूज़ करेंगे, रीजनिंग यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ करेंगे। उसके बेस पे हम एक इफेक्टिव आउटपुट को या ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आप उस क्वेश्चन को अपने माइंड में सोच करके कॉम्प्रिहेंड करते हैं और अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उसको समझ करके लिखते हैं, तो आपका आउटपुट इनपुट सेम नहीं है। मतलब जो आपने याद किया था और जो आप लिख करके आ रहे हो वो सेम नहीं है, उसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है। सो दिस इज अ हायर लेवल 2 ऑफ competence, which is known as cognitive competence, according to Arthur Jensen. The example is again learning with understanding. It's not just rote memorization. J.P. Guilford's structure of intellect model, also known as 3D model or three-dimensional model of intelligence. Now, this model is a bit tricky, okay? But अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे. Now, J.P. Guilford's structure of intellect model talks about three things. First is mental content, second is mental operations, third is mental product. यहाँ पर कुछ सेल्स हैं, आप देख पा रहे हैं ये कुछ सेल्स हैं. टोटल सेल्स हमारे पास है 5 into 6 into 6, that is 180 cells. Operations are performed on content to produce product. हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन dimensions हैं. One is content, one is operations, one is product. Now what is content? Content होता है nature of information on which mental operations are performed. हमारे आसपास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ओके? वो इंफॉर्मेशन विजुअल हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन ऑडिटरी हो सकती है, सिंबॉलिक हो सकती है, सिमेंटिक हो सकती है या बिहेवियरल भी हो सकती है, जो भी लोगों के बिहेवियर्स आप देख रहे हैं, ओके? सो इट इज़ द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड अस. यहाँ तक क्लियर है? Now, what are operations? What the respondent does to a particular content. ये मेंटल ऑपरेशंस है, हमें ये याद रखना है कि हम कौन कौन से मेंटल ऑपरेशंस ऑपरेट करते हैं कंटेंट के ऊपर टू गेट अ पर्टिकुलर मेंटल प्रोडक्ट. ओके. थर्ड इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट इज फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट. हमारे माइंड में किस फॉर्म में, किस स्ट्रक्चर में, किस पैटर्न में एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर के निकल के आती है, द रिजल्ट ऑफ विच इज नोन एज प्रोडक्ट. ऑपरेशंस अगर आपको याद करने हैं, देर आर 6 ऑपरेशंस. द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हियर इज मैकडी. हमने मैकडोनल्ड्स के बारे में सुना है, मैकडी. अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, एम पर और सी पर. दैट मीन्स एम यहाँ पर 2 है और सी भी 2 है. ओके. मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग stands for M. E is for evaluation, C for cognition and convergent production, 2 है, and D for divergent production. अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे. थर्ड इज सिट्रस. इसके थ्रू आप ये 6 सेल्स को याद कर सकते हैं. यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशन. ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं मेंटली. किसके ऊपर? कंटेंट के ऊपर, जिसके थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म होता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल. कंटेंट में बिहेवियरल कंपोनेंट है. ओके. सो बिहेवियरल इंफॉर्मेशन, वी हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड अस. फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर एंड इन माय क्लास देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. उन सबका बिहेवियर अलग है, ठीक है? तो बिहेवियरल इंफॉर्मेशन मेरे पास आई. अब उस बिहेवियरल इंफॉर्मेशन के ऊपर मैंने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ऑफ कॉग्निशन. यहाँ पर कॉग्निशन है, यस कॉग्निशन है. नाउ कॉग्निशन को मैंने अप्लाई किया उस बिहेवियरल इंफॉर्मेशन पे. मतलब मैंने सोचा वो सारे बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ माय क्लास स्टूडेंट्स के बारे में, जिसके बेस पर मैंने अपने ही माइंड में एक मेंटल प्रोडक्ट बनाया, विच इज क्लासेस, दैट आई क्लासिफाइड my students as introverts and extroverts. Cognition मैंने किया किसके ऊपर? Behavioral information के ऊपर, जिसके थ्रू मैंने कुछ क्लासेस मतलब एक प्रोडक्ट को अपने माइंड में फॉर्म किया. अनदर एग्जाम्पल कुड बी, मेरे पास कंटेंट में विजुअल इंफॉर्मेशन है. कंटेंट में विजुअल है, राइट?
जिसके बेस पे अगेन मैंने कॉग्निशन अप्लाई किया, मैंने उसके बारे में सोचा, उसको ऑब्जर्व किया, उसको रीज़न किया, जिसके बेस पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट कर ली दोबारा से कुछ क्लासेस. ओके, क्लासेस अगेन इज अ प्रोडक्ट दैट इज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दैट इज बहुत सारी विजुअल इंफॉर्मेशन के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं क्लासीफाई कर सकती हूँ एज प्रोडक्ट्स और एज, for example, fruits and vegetables. So, we should always remember that mental operations are applied on content to get a particular product. और हमें ये याद रखना है कि ये सब mentally हो रहा है. Mental content, mental operations, mental product. Operations are performed on content to produce a particular product. So this is about J.P. Guilford's structure of intellect model, also known as 3D model of intelligence, through these two examples. We will do the remaining part in the coming week.